Yes, students, continuing with chapter number 4 of statistics, and today we will be doing both theory as well as a practical part. Now, I'll start with quartile deviation today. Now, you all know that only extreme observations, that is the largest and the smallest observations, are used in computation of range. Yes, we have already done range. तो रेंज में हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन जो होता है वही हम कंसीडर करते हैं. Similarly, by using positional measures known as first quartile and third quartile, another measure of dispersion, namely quartile deviation, is obtained. Yes, quartile deviation को calculate करने के लिए हमें Q1 और Q3 चाहिए होता है. आप सबको आता है कैलकुलेट करना. द मेजर ऑफ वेरिएशन डिफाइंड बाय यूजिंग द मिडिल मोस्ट 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड्स इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन. यस, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम अभी इसी टॉपिक में पढ़ेंगे. सो द मेजर ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1 बाय 2. and symbolically it is denoted by QD. D नीचे आएगा. We can write the formula of quartile deviation as follows: QD equals to Q3 minus Q1 upon 2. ये जो दो लाइन्स आपको दी हुई थी स्टेटमेंट फॉर्म में, वो इधर इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला हमें बताया गया है. क्वार्टाइल डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. यस, ये इसका दूसरा नाम दिया हुआ है आपको स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग इट. जो Q3 माइनस Q1 इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज. यस, Q3 माइनस Q1 का दूसरा नाम है इंटर क्वार्टाइल रेंज, बट मोस्टली इट इज़ रिड्यूस्ड टू इट्स सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज विच इज़ नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज. मगर फिर बाद में उसको रिड्यूस कर दिया जाता है विच इज़ midpoint of interquartile range. Midpoint of interquartile range, yes, everything is explained to you over here students. ये almost पूरा screen उसी से related है. Quartile deviation shows the average value by which two quartiles, that is Q1 and Q3, differ from the median. Median से उसके differ वो कितना करता है median से, वो बताया जाता है. So over here it is explained to you. We all know beginning 25% of the observations Q1 होते हैं, median center, और फिर लास्ट में हमारा Q3 आता है. सो ओवर हेयर क्वार्टाइल डेविएशन फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ था, ये वाला, वो इधर हमको बताया गया है स्टूडेंट्स. इट इज़ Q3 माइनस M प्लस M माइनस Q1. ये दोनों ब्रैकेट में है, ये पॉइंटर आप देख सकते हैं. पूरा कंप्लीट डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू Q3 minus Q1 upon 2. You all know how to calculate it. Now, if QD is divided by mean of Q1 and Q3, we get the relative measure of quartile deviation. Yes, हमें relative measure मिलेगा quartile deviation का. So, relative measure of quartile deviation formula Q3 minus Q1 upon 2, फिर whole upon Q3 plus Q1 upon 2 equals to Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 again. Yes, you all know how to calculate it. The relative quartile deviation is also known as coefficient of deviation. Actually mostly word coefficient of quartile deviation ही use होगा, relative quartile deviation word कम use होता है. Note that QD has unit of measurement in which observations are expressed, but coefficient of quartile deviation is independent of such unit, that is coefficient of quartile deviation is a unit free measure. QD जब आप कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तब अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर्स में दिया हो तो आंसर आप सेंटीमीटर्स में लिखेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं करेंगे जब कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना होता है. नाउ next I move on to the practical part of our QD and coefficient of quartile deviation. Now students, if you see over here, a bus operator gets the following number of passengers in 10 trips on a day. Find the quartile deviation and its coefficient of number of passengers from the following data. Now over here the data is given to us. Yes, हमारा सबसे पहला स्टेप जब भी क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने का होता है, डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, जो यहाँ पे अरेंज की हुई है. नाउ सिंपल, इफ यू वांट टू सी इट वंस अगेन, 19, 25, 35, 10, 24, 8, 12, 5, 20, 30, ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे पहले 5,
उसके बाद आएगा 8, then it is 12, then it is 19, so on students. You all know how to arrange it in increasing order. Now we go for the calculations. Here n is 10 and 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है. Now formula we all know, Q1 के लिए n plus 1 upon 4, our n is 10, 10 plus 1 is 11, 11 by 4 is 2.75. Now next हमारे को Q3 निकालना है, तो Q3 is 3n plus 1 upon 4. ऑब्जर्वेशन पूरा वाला आपको याद होगा, देखो इधर भी वही दिया हुआ है. सो यस इट इज़ 10 plus 1 11, 11 by 4 8.25. सेम चीज़ इधर भी आप लोगों को दिया हुआ है अगेन. सो हियर Q1 equals to value of n plus 1 upon 4th observation. So value equals to 2.75th observation. सेकेंड वाला कौन सा है हमारा? यस 8 है हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन, तो हम 8 लिखेंगे प्लस 0.75 क्योंकि इधर पीछे 0.75 आया है. लॉजिक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा इट इज़ यस इफ़ यू पीपल रिमेंबर 2.75 किसके बीच में आएगा स्टूडेंट्स? बिटवीन द यस second and third observation. So value of third observation minus value of second observation. So 10 minus 8 करेंगे and you will get 2. 2 if you multiply by 0.75 you will get 1.5. फिर 8 plus 1.5 9.5. फिर सेम हम Q3 कैलकुलेट करेंगे 8.25. I have already explained you how to calculate. 8th ऑब्जर्वेशन हमारा कौन सा है? 8th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8. 8th ऑब्जर्वेशन 25 है, 25 प्लस 0.25. फिर उसके बाद यस वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन. सो दिस इज 9th ऑब्जर्वेशन 30, 8th ऑब्जर्वेशन आया 25. सो 30 minus 25 5 मल्टीप्लाई by 0.25 you will get 1.25 प्लस करेंगे उसको हम 25 में you will get 26.25. Q3 minus Q1 upon 2 is formula of quadrile deviation. You will put the values students. Yes Q3 26.25 minus 9.5 हमारा Q1 divide by 2 you will get 8.38 passengers. Now next is coefficient Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. So 16.75 Q3 minus Q1 का वैल्यू जो यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो आएगा यस पॉइंटर पे देखें प्लीज़. नीचे प्लस करेंगे आप 26.25 प्लस 9.5 you will get 35.75. 16.75 डिवाइड बाय 35.75 you will get 0.4685 and yes इसको आप इक्विवेलेंट टू 0.47 बोल सकते हैं. आई होप आई एम क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. नाउ आई मूव ऑन टू यस सेम, इसमें भी आप लोगों को दिया हुआ है. दिस इज यस ये XI/FI वाला सम है. ओवर हियर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइम इन minutes is taken to solve a puzzle by 50 students is given to you people. You need to find out QD and coefficient of quadrile deviation. Now this is our x 2 4 6 8 10. Our frequency is 3 12 8 12 and 5. Cumulative frequency you all know how to calculate. Now let us move on with the मेन पार्ट. n is 50. यस फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा n आता है वो है 50. सो Q1 का कैलकुलेशन n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. n is 50 प्लस 1 बाय 4 यू विल गेट 12.75. 12.75 हम देखेंगे इधर हमारे CFI में 12.75 15 तक आता है एंड आर Q1 is 4 minutes. तो 4 minutes इधर आएगा. नेक्स्ट इज Q3. वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. यू विल कैलकुलेट सेम 51 बाय 4 यू विल मल्टीप्लाई बाय 3 यू विल गेट 38.25th ऑब्जर्वेशन. 38.25th ऑब्जर्वेशन आएगा CFI में देखने पे 45 के अंदर आएगा. सो यस योर Q3 इज 8. We'll put the details in the formula. Q3 minus Q1 upon 2 for quadrile deviation it is 8
minus 4 upon 2, your answer is 2. Now let us move on to a coefficient Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. Q3 minus Q1 करने पे 4 आया था, that is 8 minus 4 is 4. नीचे प्लस करेंगे हम उसको, that is 8 plus 4, you will get 12, so 4 by 12.33, and your answer for coefficient is 0.33. Now let us move on to, yes, same अभी ये आएगा आपका classes वाला sums, that's continuous frequency distribution. Now over here the classes are given to you. If you see, it is open-ended classes हैं ये. क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है CFI. Yes, you all know how to calculate. Our very first step, n फाइंड आउट करना. n इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 1000 आपको दिया हुआ है. नाउ वी स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ Q1, वैल्यू ऑफ n अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. सो 250 आएगा. 250 कैसे आएगा? येस, इट इज़ 1000 डिवाइडेड बाय 4, यू विल गेट 250. अब इस 250 को हम CFI के कॉलम में देखेंगे तो 250 आएगा यहाँ पे 594 तक आएगा स्टूडेंट्स. सो 294 तक आएगा. सो 294 इज 70 to 90 वाला क्लास है आपका इधर. तो 70 to 90 वाला क्लास यू ऑल नो. अब 70 to 90 वाला क्लास है. यहाँ पे हमारा L is 70 because it is exclusive series. So L is 70, n by 4 already calculated 250. 154 हमारा CFI, या CFI ऊपर वाला होता है फ्रीक्वेंसी, वही वाले क्लास की लेते हैं. सो इट इज़ 140 क्लास लेंथ जो है, जो हमारे ये वाले क्लास की है जिसमें हम लोगों ने देखा था हमारा n by 4 वाला, वो 2020 है. नाउ विल पुट ऑल द डिटेल्स इन द फॉर्मूला. 70 प्लस फिर 250 माइनस 154 अपॉन 140 इंटू 20 विल कैलकुलेट पूरा. 250 माइनस 154 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, यू विल गेट 1920 डिवाइडेड बाय 140, यू विल गेट 13.7143. उसको हम 70 जो हमारा L था उससे प्लस करेंगे, 83.7143 इज़ योर Q1. सेम वे यू विल बी कैलकुलेटिंग Q3. 3n+1/4 वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा. सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. यहाँ पे इट विल बी 3n/4th ऑब्जर्वेशन बिकॉज हम क्लासेस वाला कर रहे हैं. सो इट इज़, yes my dear students, 1000 by 4 we got 250. 250 if I multiply by 3 I'll get 750. अब हम 750 को देखेंगे CFI के कॉलम में, we will get 100 to 130 वाला क्लास आएगा. सेम वैल्यूज़ हम डालेंगे जैसे आपने Q1 में किया, जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में सिखाया था. यू विल गेट Q3 123.57 रुपीज़. पुट द डिटेल्स इन द फॉर्मूला. Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 में आप डिटेल्स डालेंगे, दैट इज़ 123.57 माइनस 83.71 डिवाइड बाय 2, इट इज़ 39.86 बाय 2, यू विल गेट 19.93 एज योर क्वार्टाइल डेविएशन. नाउ वी मूव ऑन टू द कोएफिशिएंट Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1. yes, again you will be calculating, finally you will get 0.91 है इसका आंसर. सिंपल एंड ईजी कैलकुलेशन. स्टूडेंट्स यू नीड टू सी स्टेटमेंट्स आप लोगों को सब में लिखनी होंगी. और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि कहीं कहीं पे कोई वैल्यूज़ जो हैं वो अप्रॉक्स ली जाती हैं, या जैसे नियरर टू लिया जाता है कि जैसे इधर आया 0.9123, तो 0.91 जैसे इधर इन्होंने लिया है, या आगे के सम्स में भी हमने देखा उस तरह से कोई सम में वैल्यूज़ इधर भी ली गई हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. क्वार्टाइल डेविएशन इज अ क्लियरली डिफाइंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन. येस, इट इज़ सिंपल, क्लियर, डिफाइंड. इट्स कंप्यूटेशन इज सिंपल. येस, इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल एंड ईजी है. Value is not affected by unduly small or large observations of the data, as only middlemost 50% of the observations are taken into account for computation of quartile deviation. Yes, बहुत छोटे और बड़े observations का फ़र्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि हमने middle 50% of the observations consider किए हैं.
It is only measure of dispersion which can be computed if frequency distribution has open-ended classes. Yes, range calculate नहीं हो पाता क्यों? You all know. Only this measure can be calculated when the classes are open-ended. Now the disadvantages: first 25% and last 25% of the observations. The first 25 and the last 25% of the observations are ignored for obtaining quadrile deviation. Thus all the observations are not used. Yes, यहाँ पे सारे observations include नहीं होते हैं. So it is but natural कि ये suitable नहीं होगा algebraic operations के लिए. हमने characteristics में study किया था. All observations should be included and obviously फिर वो algebraic operations में काम आएगा. It is not stable measure with respect to सैम्पलिंग. ये सैम्पलिंग के हिसाब से ये स्टेबल मेजर नहीं है. दिस मेजर इज लेस एप्लीकेबल इन एडवांस्ड स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स. यस, एडवांस स्टडी में ये इतना काम नहीं आता है. सो स्टूडेंट्स, आई एम डन with my today's e-class, and yes, I hope you were able to understand the topic. Thank you.